Very good morning, students. I am Poonam Prasad, your social science teacher here. I am with a important topic today of your chapter number 1, Rise of Nationalism in Europe, your sub-subject history. Students, today we are dealing with the two topics in one in this video and another one. Britain became a nation state in another video. So in this video we are going to deal with the unification of Italy. Students, in our early class, we came across with the unification of Germany with the help of, or you can say, the main role played by Otto von Bismarck. Students, nation state formation, it was the prime aim of the conservatives during the period, you can say, after 1848 revolutionary actions, or you can say nationalist feelings. आफ्टर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू किस तरीके से कंजर्वेटिव रिजीम्स ने अपने हाथ में बागडोर संभाली थी टू यूनिफाई द नेशंस. फाइन, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ठीक है बेटा, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली. स्टूडेंट्स, जो इटली था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिडिल 19th सेंचुरी, उसमें बहुत सारे स्टेट्स थे. पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन यू हैव टू वेरी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एंड यू हैव टू थॉरली गो थ्रू. आप जब इसको रिवाइज करोगे तो इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपका फर्दर प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन है, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. सो लेट्स वी हैव जो मिडल ऑफ 19th century, it was called as, or it was divided among the 7 states. ठीक है बेटा. First, Sardinia and Piedmont. Sardinia, Piedmont. It was ruled by the Italian princely houses. It means in these two places only the Italian were the rulers. सिर्फ इटली के रूलर्स ही थे. इटली प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड इन सर्दिनिया एंड पेडिमोंट, याद रखिएगा. द सेकेंड इज लोम्बार्डी एंड वेनेटिया, द अगेन टू अंडर विच एम्पायर? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. लोम्बार्डी एंड वेनेटिया वर अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज पॉइंट्स. जो सेंटर पार्ट था दैट वॉज रूल्ड बाय पोप, द रिलीजियस हेड. सदर्न रीजन्स जो था, सदर्न रीजन्स में कौन से थे? दैट इज 2 नेपल्स एंड सिसिली, जो कि बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर डोमिनेशन में थे. यानी हु रूल्ड ओवर देयर? बर्बन किंग ऑफ स्पेन. And last, the states of Parma, Modena and Tuscany, they were considered as an independent state. But these three touches, you can say Parma, Modena and Tuscany, they also played a very important role in the unification of Italy. So ultimately, we have learnt that the 5 ones are there. One is called as Sardinia, Piedmont, Italian princely houses. Lombardy, Venetia, वो किसके हाथों में थे? Austrian Habsburg. Center was ruled by the Pope. Southern regions, Naples and Sicily, जो कि under the domination of Bourbon King of Spain, and the states Parma, Modena, Tuscany is they are the independent states. Students, हम लोगों ने बात की about the fragmentation of Italy, right? Now children, according to Napoleon Bonaparte, Italy was considered as geographical expression. 1 marks का क्वेश्चन आ सकता है. Who said about Italy that it was considered as geographical expression, and why? Napoleon was considered Italy as a geographical expression because Italy at that time was divided or fragmented into several states, and every states were ruled by separate rulers, children.
ये कई भागों में विभाजित था इटली, और हर भाग के अपने अपने रूलर्स हुआ करते थे, अपने अपने every states are having their own rulers. Even the Italian language has not acquired one common form, and they had many regional dialects, or you can say many regional variants. It means वहाँ पे एक common identity that Italian language can be the you can say it suggested about the collective identity, but it was not so. Achievement of Italian unification was based on the work done by, we have already learnt about Giuseppe Mazzini, हम लोग already learn कर चुके हैं revolutionary में. उसके बाद next is Giuseppe Garibaldi and the very famous Camillo that is called as politician Cavour. So Camillo Bonsi Cavour. It means we have to go through with the unification of Italy, with the contribution of these revolutionaries, with the contribution of these people, these patriots, or let's we talk on the process, or you can say let's we talk on the process of unification. लेकिन process of unification को जानने से पहले let's we talk on the role of Mazzini. Students, हम लोग केवर के बारे में भी पढ़ेंगे, मेज़नी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हम लोग गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब रिलेट होगा आपके यूनिफिकेशन से. Mazzini, Giuseppe Mazzini, 1830. He was already, we learnt across that in a very early stage, in a very early year of his age, उनको देश निकाला दे दिया गया था. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज रिवोल्यूशनरी एक्शंस. उन्होंने कार्बनरी सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की. ही वॉज अ मेंबर ऑफ दैट. ही लेटर फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली. He was the member of the secret society Carbonari, and he later formed a secret society Young Italy for spreading his objective of unification. क्योंकि अल्टीमेटली उनका मानना था कि इटली सिर्फ एक पैच वर्क की तरह नहीं होगा, बल्कि वो एक नेशन स्टेट में फॉर्म होगा. अर्ली वी केम अक्रॉस विद हिज आइडियोलॉजीज, राइट बेटा. अब although the revolutionaries uprising was suppressed by the conservative regimes during the period of 1831 and 1848, तो उनके भी एक्शंस जो थे, रिवोल्यूशनरी एक्शंस थे, खासकर मेज़नी के, वो कहीं ना कहीं फेल्ड हुए. लेकिन बेटा वो फेल तो हुए, वो जो रिवोल्यूशनरी एक्शंस के थ्रू या लिबरलिस्ट कहीं ना कहीं कंट्री को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, चाहे वो जर्मनी में हो चाहे वो इटली में हो, वो फेल तो हुआ, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म और देशभक्ति की जो भावना थी वो जागृत रही, और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? जोसेपी मैज़नी का. सो आपके बोर्ड में रोल ऑफ जोसेपी मैज़नी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चिल्ड्रन. लेट्स वी टॉक ऑन द नेक्स्ट. द नेक्स्ट वन इज, लेट्स वी टॉक ऑन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. स्टूडेंट्स दिमाग में रखिएगा वो सारे 7 पॉइंट्स जो हम लोगों ने, वो स्टेट्स जो हम लोगों ने डिवाइड किए थे, हम लोगों ने पहले ही याद किया था, है ना. हम वापस से उसको रिवाइज कर लेते हैं. सर्दिनिया पेडिमोंट किसके हाथों में था? इटालियन प्रिंसली स्टेट्स. लंबार्डी वेनेटिया किसके हाथों में था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. सेंटर जो था वो किसके हाथों में था? पोप. सदर्न रीजन ऑफ नेपल्स एंड सिसिली वो किसके डोमिनेशन में था या किसके अंडर में था? बर्बन किंग ऑफ स्पेन. और पर्मा मोडिना एंड टस्कैनी वाज द अनदर वन, राइट. अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, लेट्स वी स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. सर्दिनिया पेडिमोंट, सारे स्टेट्स में सर्दिनिया पेडिमोंट जो था वो इटालियन रूलर्स द्वारा रूल किया जा रहा था. बाकी अदर्स जो थे दे वर गवर्न बाय द फॉरेनर्स. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिफिकेशन इटली का किसके द्वारा इनिशिएट किया जाना था, तो मैंने पहले ही बताया कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम इन वेस्टर्न यूरोप
जो यूनिफिकेशन था या मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट था वो कंजर्वेटिव रिजीम्स ने यानी कंजर्वेटिव्स ने यानी मोनार्की ने अपने हाथों में लिया हुआ था, कंजर्वेटिव्स ने, राइट बेटा। तो जहाँ जर्मनी में हम लोगों ने देखा किस तरीके से बिस्मार्क ने और विलियम वन ऑफ प्रूशिया किस तरीके से दे इनिशिएटेड टू यूनिफाइड द जर्मनी, उसी तरह से यहाँ पे कौन लेगा बेटा? सर्दिनिया पेडिमोंट। वो क्यों? क्योंकि वो इकलौता ऐसा रीजन था जिसमें कि इटालियन प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो रूल कर रहे थे। तो अल्टीमेटली और अदर्स जो थे वो फॉरेनर्स के हाथों में थे। तो जो रूलर होगा, रूल करेगा, जैसे हमारे भी इंडिया में बहुत सारे फॉरेन रूलर्स आए, वो आए तो उनको हटाकर भारत को एकजुट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? इंडियन रूलर्स ना। उसी तरीके से इटालियन रूलर्स उन एरियाज यानी यहाँ पे सर्दिनिया पेडिमोंट के जो रूलर्स थे, पेडिमोंटीज थे, उन्होंने इनिशिएट किया टू यूनिफाइड द इटली। इज दैट क्लियर बेटा? और उनकी नज़र में कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन जो था वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन 1 मार्क्स के में आ सकता है कि what was the aim of the unification of Italy by the taken by the Sardinia Piemontes, or you can say किस तरीके से जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थे why they have taken initiative to unified Italy बेटा। तो आपका आंसर क्या होगा? they saw the possibility of economic development and political dominance due to the formation or due to the unification of Italy. Students, we have learnt about the role of Giuseppe Mazzini. The next important role was by role of Cavour Camillo Bonsetti, Chief Minister of Sardinia Piedmont. He was the Chief Minister of Sardinia Piedmont. बेटा ध्यान दीजिएगा, बिस्मार्क जर्मनी, Cavour Sardinia Piedmont. He was the Chief Minister of Sardinia Piedmont. He realizes that if Italy wants to unify it or wanted to make a nation state, two things were essential, two things were important. One was to build up a strong army, जैसे बिस्मार्क ने किया था, है ना। तो केवर भी उनके नज़र में भी था कि अगर हमें नेशन को यूनिफाइड करना है तो हम स्ट्रॉन्ग आर्मी, और दूसरा फॉरेन हेल्प वॉज एसेंशियल टू डिफीट ऑस्ट्रिया। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा। जर्मनी में भी मेन एनिमी कौन था बिस्मार्क के लिए? ऑस्ट्रिया। यहाँ पे केवर के लिए भी कौन था? ऑस्ट्रिया। Because at that time Austria was one of the powerful ruling group of Europe. At that time, of all the ruling powers in Europe, France was, जैसे मैंने कहा, पहला स्ट्रॉन्ग आर्मी बना के, स्ट्रॉन्ग वेपन्स दे के, और दूसरा जो था फॉरेन हेल्प के साथ वो ऑस्ट्रिया को डिफीट करे। सारे यूरोपियन पावर्स में फ्रांस हैज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स टू हेल्प केवर। ठीक है, केवर की मदद किसने की? फ्रांस ने। जो मेन एम था केवर का ऑस्ट्रिया को हराना, और इस तरीके से उन्होंने भी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिससे कि ये लगे कि नाउ ऑस्ट्रिया इज गोइंग टू अटैक, यू कैन से सर्दिनिया पेडिमोंट। और ये अपॉर्चुनिटी मिली केवर को इन द ईयर ऑफ 1859 जब ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्दिनिया पेडिमोंट पे। 6 हफ्तों की लड़ाई, और पेडिमोंटीज और फ्रेंच फोर्सेस ने मिलकर हराया किसको? ऑस्ट्रिया को।
और ऑस्ट्रिया को जब उन्होंने हराया तो ऑस्ट्रिया के हाथों में कौन सा था बेटा? लोम्बार्डी एंड वेनेटिया ना। तो जब ऑस्ट्रिया को हराया तो ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने अपने आप को लोम्बार्डी से हटा लिया। यानी इस टाइम पे लोम्बार्डी किसके हाथ में आया? लोम्बार्डी पर किसका हुआ? क्योंकि लोम्बार्डी वेनेटिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ना। तो उसमें जब ऑस्ट्रिया को हराया तो लोम्बार्डी हटा बेटा, वेनेटिया नहीं। लोम्बार्डी से उसने अपने फोर्सेस को हटा दिया। लोम्बार्डी किस में मिक्स हो गया बेटा? यानी लोम्बार्डी किसको चला गया? सर्दिनिया पेडिमोंट को। और यहाँ पे फिर फ्रांस ने अल्टीमेटली रिफ्यूज टू गिव फर्दर हेल्प टू केवर। उसने रिफ्यूज़ किया फ्रांस ने कि अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगेन इन द ईयर ऑफ 1860 फ्रांस दोबारा एग्रीमेंट उसने साइन किया विद केवर। केवर ने उनसे एग्रीमेंट किया पेडिमोंट के पास पर्मा एंड मॉडिना, जहाँ के लोगों ने अपने रूलर्स को हटा दिया था। लेकिन बट इफ इट टुक टस्कैनी देन फ्रांस मस्ट गेट सवॉय एंड निस विच वॉज अर्लियर द पार्ट ऑफ इटली। यानी कहते हैं ना कि वो उस एग्रीमेंट पे साइन हुआ कि ठीक है आप पर्मा, मॉडिना और टस्कैनी ले लीजिए और उसके बदले हमें सवॉय और निस दीजिए। ये एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन फ्रांस एंड इटली बिकॉज सवॉय एंड निस was earlier the part of Italy. केवर एग्रीड। क्यों? क्योंकि उसको इस तरीके से कहीं ना कहीं नॉर्थ इटालियन किंगडम कंप्लीट लग रहा था। यानी जो नॉर्थ था वो पर्मा, मॉडिना और टस्कैनी के वजह से वो कंप्लीट हो रहा था। और इन तीनों डचेस के लोगों ने पेडिमोंटीज यानी जो ऑलरेडी जहाँ पे इटालियन राज सत्ता थी उसके राज सत्ता को उन्होंने एक्सेप्ट किया। द पीपल ऑफ थ्री डचेस दे वोटेड इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग विद पेडिमोंटीज। इज दैट क्लियर बेटा? आया समझ में? ओके, नेक्स्ट वी गॉट विद द थर्ड। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द रोल ऑफ जेसुपी गैरिबाल्डी। Children, we have already came across with the role of Giuseppe Mazzini. यहाँ पे केवर ने नॉर्दर्न पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूनिफाइड करने की कोशिश की, जहाँ पे उसने ऑस्ट्रिया को हराया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है दैट इज़ द रोल ऑफ जोसेपी गैरिबाल्डी। ये सब कहीं ना कहीं वॉरियर्स थे, ये सब कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरीज थे और ये सब ये जोसेपी मैज़िनी रिवोल्यूशनरी और यहाँ पे जो जोसेपी गैरिबाल्डी हैं वो कहीं ना कहीं जो एक उनके मन में एक मंशा थी टू यूनिफाइड द यूनिफिकेशन। मैं यहाँ पे बेटा तीनों की बात कर रही हूँ। वन इज़ रोल ऑफ जोसेपी मैज़िनी, वो ख़त्म हुआ। ही वॉज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी और उनका मेन मकसद था टू यूनिफाइड इटली। फाइन। यहाँ पे केवर को हमने देखा, केवर वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट दैट इज़ ऑफ योर सर्दिनिया पेडिमोंटिस। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं को रिलेट हो रहे हैं किससे बेटा? वो को रिलेट हो रहे हैं आपके कंजर्वेटिव से। यहाँ पे जोसेपी मैज़िनी भी जोसेपी गैरिबाल्डी भी कहीं ना कहीं वो कंजर्वेटिव रिजीम से वो अटैच्ड है। तो गैरिबाल्डी ने प्रोसेस को ज्वाइन किया इन द ईयर ऑफ 1860। ही टुगेदर विद हिज आर्म फोर्सेस उन्होंने यूनिफिकेशन स्टार्ट किया साउथ यानी नीचे से, सदर्न दक्षिण पार्ट से होते हुए वो जीतते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़े। केवर नॉर्थ को हैंडल कर रहा था, कंट्रोल कर रहे थे केवर, और यहाँ से नीचे की तरफ से गैरिबाल्डी ने फर्स्ट उन्होंने सिसिली और फिर उन्होंने नेपल्स को अटैक किया। सिसिली और नेपल्स जो था वो सिसिली और नेपल्स वो किसके हाथों में थे? बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन, है ना। वहाँ पे बर्बन आर्मी जो थी
वो हारी, रूलर जो था वो भाग खड़े हुए। गैरिबाल्डी ने नेपल्स और सिसिली उठा के केवर को दे दिया और अपने घर चले गए। नेपल और सिसिली ने भी वोट किया इन द फेवर विद पेडिमोंट, यानी कि केवर के फेवर में। 1861 विक्टर इमानुएल टू, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed as the ruler of united or unified Italy। 1861 में यूनिफाइड इटली के वो रूलर घोषित हुए। बेटा यहाँ पे दो फंस रहे हैं, वन वॉज कॉल्ड एज वेनेटिया एंड अनदर वन वॉज कॉल्ड एज रोम। वेनेटिया एंड रोम रिमेन्ड आउटसाइड इटली, वो कंबाइंड नहीं हुए थे। 1866 में जब बिस्मार्क की लड़ाई, बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, जब उनकी लड़ाई हुई ऑस्ट्रिया से, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा कि बिस्मार्क की जब लड़ाई 1866 में ऑस्ट्रिया से हुई तो ऑस्ट्रिया को उन्होंने डिफीट किया। उन्होंने वेनेटिया उठाया और वेनेटिया उन्होंने ऑस्ट्रिया से लिया और किसको दे दिया बेटा, इटली को, क्योंकि लोम्बार्डी और वेनेटिया दो थे। लोम्बार्डी में को तो हरा दिया था, लोम्बार्डी से ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया था कंबाइंड फोर्सेस ऑफ फ्रांस एंड सर्दिनिया पेडिमोंटीज ने, लेकिन वेनेटिया बचा था। वेनेटिया को ऑस्ट्रिया को हराया किसने, बिस्मार्क ने, और वेनेटिया उठा के किसको दे दिया बेटा, इटली को। उसके बाद 1870 में आपको ध्यान होगा बिस्मार्क ने किसको हराया था, फ्रांस को, और यहाँ पे फ्रांस ने अपनी जो सेना थी वो रोम से हटा ली। कहाँ से हटा ली बेटा, रोम से, और अल्टीमेटली रोम को हैंडओवर कर दिया किसको, इटली को, और इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। बेटा ये यूनिफिकेशन बहुत इजी है, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू विद द पॉइंट्स। बेटा आपको पॉइंट्स को याद करना है, ठीक है, बहुत इजी है। अल्टीमेटली हु हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू यूनिफाइड द rulers of Sardinia Piedmont, who became the ruler of Italy in 1861, Victor Emmanuel II। क्वेश्चन आ सकता है, who became the emperor of unified Germany? आपका आंसर आएगा केसव विलियम I। he was the emperor of unified Germany, who played main role in the यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बिस्मार्क। अगर इटली में तो यहाँ पे जोसेपी मैज़नी, केवर, जोसेपी गैरिबाल्डी और विक्टर इमानुएल II। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? So this is all about this slide which dealt with the unification of Italy। Is that clear बेटा? Next slide में हम लोग पढ़ेंगे about the Britain to become a nation। So children, watch the video and you have to go through with the notes also। बट बहुत अच्छी तरीके से यूनिफिकेशंस को आप याद करिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? टिल देन, थैंक यू।